کبھی کسی کو حقیر مت سمجھیو، یہ مت سمجھیو کہ میں بہت سا اونچا ہوں اور یوں نہیں۔ ایک سید صاحب تھے، حضرت آل رسول تھے، ان سے پوچھا گیا آپ تو آل رسول ہو، سید صاحب ہو، اتنا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، ولی ہو، تو تمہیں یہ بتاؤ ولایت ملی کیسے؟ آخا جو انہوں نے جواب دیا تھا نا، دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کہا آپ ولی بنے کیسے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت اونچے خاندان سے ہوں، یہ نہیں کہا میں بڑی تہجد کی نمازیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا ہوں، ایسا متقی پرہیزگار ہوں، یہ نہیں کہا۔ کہا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے، بتاؤں؟ کہاں؟ کہا ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو صبح صبح میرا دل تھوڑا پریشان تھا، اور جیسے ہی پریشان تھا نا تو میرا دل یہ لگا کہ باہر کو چلو، ہریالی میں کو ٹہلو۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا ایک کتا تھا، کتا کیا تھا بولو؟ اور کتے کی گردن یہاں اوپر سے سڑ رہی تھی، اور اس سڑی ہوئی گردن پہ نا کیڑے بل بل آ رہے تھے، اور کتا یوں کر رہا بہت زیادہ پریشان، بہت پریشان، اور منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، اور لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا کی کرتا ہوا۔ وہ سید صاحب بولے کی کرتا ہوا لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا، مگر کوئی پاؤں مار دے، کوئی ہٹ کر دے، کوئی ڈنڈا مار دے، کوئی پتھر مار دے، کوئی انسان نہیں مل رہا تھا۔ اور وہ کتا کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے اس تکلیف سے کوئی نکال دے، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے کوئی نکال دے۔ اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے نا۔ وہ آل رسول بولے میں دیکھ رہا تھا وہ کتا میری طرف کو آیا، تہمت باندھے ہوئے تھے، وہ بولے میری طرف کو آیا تو میں نے بھی اپنا تہمت سمیٹا، کہیں اس کا تھوک نہ لگ جائے، کیونکہ تھوک ناپاک ہے، رال نہ لگ، سوکھا ہوا کتا لگ جائے تو تمہارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اور اگر گیلا لگ جائے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ کتے کا تھوک لگ جائے، رال لگ جائے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات صاف ہو گئی۔ اب وہ انہوں نے کپڑے سمیٹ لیے، مگر وہ بھی پیچھے ہٹے، اور انہوں نے ایسے کرا تو کتا دم ہلانے لگا۔ کتا سمجھا نا یار کوئی مل گیا، اب انسان مل گیا، انسانیت بیدار کرو۔ کہا کون مل گیا؟ بولو بولو انسان مل گیا۔ وہ آل رسول کہنے لگے جب میری نظر اس کی گردن پہ پڑی تو کیڑے بل بل آ رہے تھے، میں نے دعا کی اے اللہ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں اس کے کیڑے بین دوں۔ اللہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک طرف پڑی ہوئی لوہے کی تان مل گئی، جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے نا، باریک سا تار مل گیا۔ انہوں نے اس کو ایسے کر کے چمٹی کی طرح بنا لیا، جیسے چمٹی بناتے نا، اور چمٹی کی طرح بنا کر کے اپنے کپڑے سمیٹ کے ایسے کر لیے، کتے کو پچکارا، کتا دم ہلانے لگا۔ وہ سید صاحب بولے میں نے اس چمٹی سے ایک کیڑا اٹھایا پھینک دیا، دوسرا اٹھایا پھینک دیا، سارے کیڑے بین دیے، کتا ٹھنڈی سانسیں لینے لگا۔ واہ 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 واہ۔ اب وہ بولے اس کا تھوک وغیرہ ختم ہو گیا نا، بولے اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو برابر میں دوب گھاس کھڑی تھی۔ دوب جانتے ہو نا؟ دوبر، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، دوبرا بولتے ہیں نا ادھر، دوبر، ہاں دوب بھی بولتے ہیں اس کو، دوبر بھی۔ انہوں نے وہ کھیڑی اور ایسے کر کے جھاڑی، ایک پتھر پہ رکھی، دوسرے پتھر پہ کچل کچل کے جتنا بڑا زخم تھا نا اتنی بڑی ٹکیا بنا لی۔ اگر تمہارا کہیں کٹ جائے نا دانتوں سے، اس دوب کی پتی کو چبا کے لگا لو، فوراً خون رک جاتا ہے، پھر پک نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سن، وہ بوٹی ہے، وہ جڑی بوٹی۔ اب انہوں نے اس کو کھیڑا، ٹکیا بنائی اور کتے کو ایسے کیا، کتا کھڑا ہو گیا، کوئی انسان مل گیا۔ اب انہوں نے سوچا یہ چلے گا تو ٹکیا گر جائے گی، انہوں نے اپنی لنگی لی اور لنگی سے چیر پھاڑی، پھاڑنے کے بعد کتے کے مال دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے جیسے زخم بھرتا گیا ویسے ہی اللہ انہیں ولایت عطا کرتا گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، حضرت سید مقیم رحمان صاحب قبلہ۔ مگر ہمارے یہاں کہاں کتے کو کیا راحت پہنچاؤ گے؟
अम्मा अगर पान खा के थूक देना, जो टाइल्स और पत्थर जो दिल्ली की कमाई और वैसे अपनी कमाई से तुमने लगाया ना, तो अम्मा पे भी आंखें निकालने लगता है, आंखें। कौन अम्मा है ये? जिस अम्मा ने, अल्लाह बरकतें फरमाए, जिस अम्मा ने इसकी लैट्रीन धोई है, जिस अम्मा ने इसका थूक धोया, जिस अम्मा ने इसका पेशाब साफ किया, जिस अम्मा ने इसको नहलाया धुलाया, बस 4 पैसे कमा के अगर मकान बना के टाइल्स पत्थर लग गया, अगर अम्मा ने खांस दिया, खकार दिया, थूक अगर कर दिया, बस इसकी त्योरी बिगड़ जाती है। कहता है इस घर में तो ना इंसान रहते ही नहीं है, ऐसे कहता है इंसान रहते ही नहीं, बेकार लगाया पत्थर, इन्हें तो वो घूरे पे रहने की आदत है। क्या गिर गए क्या? अच्छा उतर गए, समझे? वो ज्यादा बोल लिया पीछे का वो, हाँ स्टेज बोल रहा, तवज्जो रखो मेरी तरफ, चलो। तो ऐसे जुमले फेंकता है, बोले इंसान थोड़े रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं। कौन है? अम्मा जानवर है, अब्बा जानवर है, इंसानियत पहचानो यार। वो आले रसूल थे, इतना ऊंचा मकाम था। अच्छा उन आले रसूल का नाम बताऊं? लग रहा है समझ में नहीं आ रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। उन आले रसूल का नाम बताऊं? उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई, अबुल उलाई सिलसिले के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। मैं इनके मज़ार, जब मैं करबला शरीफ गया था ना, और गौसे पाक के मज़ार पे, तो इनके मज़ार पे भी गया था। अल्लाह अल्लाह, एक कुत्ते की वजह से ये मिला। मेरे नबी फरमाते अगर तुम्हारे माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ मेरी दुआ की तरह होती है। यानी आका फरमाते अगर तुम्हें कामयाबी हासिल कर ली है तो माँ बाप को राजी कर लो। अब हजरत उमर की बीवी बोली ये पकाओ काढ़ा। हजरत उमर ने 3 पत्थर रख लिए, हांडी चढ़ा दी। अब वो समझा कि पता नहीं कौन, कह रहा जरा संभल के जलाओ, संभल के जलाओ। हजरत उमर फूंक रहे हैं, आंखें लाल हो गई, समझे, और लकड़ियाँ जलने का नाम ना ले, धुआं दाढ़ी में को निकले। बड़ी मुश्किल से वो काढ़ा बनाया, काढ़ा बना करके अपनी बीवी को दे दिया। उनकी बीवी ने जो था उनको जा करके पिलाया, और जैसे ही वो काढ़ा जब उन्होंने पिया, थोड़ी देर के बाद खेमे में बच्चे की किलकारी की आवाज आ गई, बच्चा रोने लगा। हजरत उमर की बीवी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक मुबारक, तुम्हारे दोस्त के बेटे के यहाँ तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसने जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना, इधर उधर देख रहा है, अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा गया। अब तो इसे पसीना आ गया, अरे हजरत उमर यही है। अब कहने लगा माफ कर दो, सुना था ना कि हजरत उमर का जलाल कि शैतान भी रास्ता छोड़ देता, सोच अब तो बोटी बोटी कर देंगे, अब तो बहुत मारेंगे। कहने लगा कदमों पे आ गया, कहने लगा मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे पता नहीं था, मगर मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपने मुझे मारा क्यों नहीं था? कहा इसलिए सुन ले, तूने जो तरबियत पाई है वो अपने बाप से पाई है, और मैंने जो तरबियत पाई है वो रसूल पाक से पाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने जो तरबियत पाई है किससे पाई है बोलो? तो रसूल पाक की अदाएं अपने घरों में लाओगे? बोलो लाओगे? आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं होगा। और सुनो एक बात और बता दूं, आजकल जो ना नशे की लत बहुत चल रही है, नौजवान बहुत सारे पहले मोबाइल से बर्बाद हुए थे, अब नशे से बर्बाद हो रहे हैं। नशे से क्यों? वो जिम है ना, जिम, तो ये डोले शोले जो बनाने जाता है ना, हमारे तो है ही नहीं, हड्डी चटक रही है खाली, समझे। मगर अल्लाह का शुक्र है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब लड़के जाते हैं ना वो बनाने के लिए ना, और 6 पैक और पता नहीं कौन कौन से पैक, तुम ज़्यादा जानते हो मुझसे,
बनाने जा, मुंह नहीं धुलता, वो सिक्स पैक बनाने जा रहा है, समझे, सिक्स पैक बना। अब वो पता नहीं कौन कौन से पाउडर खा रहा है, कौन कौन से कैप्सूल खा रहा है, उन्होंने सुझा कर रख दिया ऐसे कर, जैसे कुप्पा ना। अब घूमा फिर रहा, शादियों में तित्ती बनियाने काट ली ताकि ये डोले शोले दिखते रहे, और फिर 2 महीना अगर छोड़ दी फिर पिचक गया, ऐसा भी हो गया, पटक गया, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो बाज़ लोग ना उसमें इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर नशे की आदत डाल ली। इतना प्यारा वजीफ़ा बताऊंगा ना तुम्हें, सही बता रहा हूँ, ना तुम्हारे हाथ पाँवों में दर्द हो, ना तुम्हारा पेट बढ़े बहुत ज़्यादा, और इतना 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने वक्त की बोलो? और फजर की नमाज पढ़ के सिर्फ 111 मरतबा थोड़े तेज कदमों से ऐसे करके दौड़ते हुए अपनी खेत की तरफ इधर 111 मरतबा, जहाँ तक दुरूद शरीफ पढ़ सको 111 मरतबा वहाँ तक दौड़ लो, और फिर वहाँ से उधर से आओ दौड़ते हुए 111 मरतबा इधर से पढ़ लो। गारंटेड मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं मगर ये अमल गलत नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह उसे कभी ज़िंदगी में हार्ट नहीं होगा। मौत आएगी, उसको मौत आएगी, मगर हार्ट की बीमारी में नहीं मरेगा। अल्लाह बरकतें फरमाए। समझ में आ रही है? जो बाल पड़ते करो तो हमारे यहाँ इतना अच्छा इंतज़ाम, जो वो कराते हैं ना, रात को सिर्फ आधा घंटा जैसे नमाज में बैठे, अब अपनी आँखों से अल्लाह, आँखों से लिखे, जैसे ए अलिफ बनाई, फिर ये लाम और ये लाम और ये हा, ऐसे अलिफ अल्लाह, ये अल्लाह, ये वजीफ़ा है आँखों का। समझे? समझ रहे मेरी बात? अब यही वजीफ़ा आप किससे कर सकते हो? समाज से कर सकते हो। कान से ध्यान लगाओ, आँख बंद, दुनिया भूल जाओ, आँख बंद करके अलिफ अल्लाह आ गया। मतलब इससे ना तुम्हारा अंदर का जो कल्ब है ना, ये रोशन हो जाता है। फिर तुम आँख बंद करके ना ऐसे करके अगर बैठ जाओगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारे यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन आने वाला है। अगर ये कल्ब रोशन, शाजी मियाँ हुजूर का नाम सुना होगा पीलीभीत शरीफ में, और बड़े पाए के बुजुर्ग यार, शाजी मियाँ हुजूर, तो वो तालाब पे वज़ू बना रहे थे। कहाँ वज़ू बना रहे थे? बैठे तालाब पे आदमी वज़ू बनाता तो कैसे, ऐसे करके कुल्ली करेगा तो उसी में, नाक में पानी डालेगा उसी में। तो आपने कुल्ली करी, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, फिर सर का मसा किया। तो पूरे सर का मसा नहीं किया बल्कि चौथाई सर का कर लिया, और चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है। समझे? तो उन्होंने पूरे सर का नहीं किया बल्कि किसका कर लिया? सुन्नत अदा नहीं की, मतलब मुस्तहब और सुन्नत है, सुन्नत अदा नहीं की, फ़र्ज़ अदा। तो वो 2 मौलाना आ रहे थे, वो मौलाना जिनके दिल में नूर नहीं था, जो अल्लाह वालों की शान में गलत सलत बोलते हैं, वो आ रहे थे, पैजामे ऊंचे थे। तो उन्होंने कहा, अरे यार इस फ़कीर को लोग वली कहते, देखो इसने सुन्नतों पे तो अमल किया नहीं, और जो सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा तो फिर वो वली कैसे होगा? चलो आज इसको लेते हैं। बड़ी दूर से तेज जा रहे थे मगर शाजी मियाँ हुजूर वज़ू बना के ऐसे बैठे, उनके दिल की आवाज़ सुन ली, उठे ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। ये बोले चलो जल्दी चलो, फ़कीर चला ना जाए, मगर इनसे कहना बेटा गलत जगह हाथ डाल लो। शाजी मियाँ हुजूर की बारगाह में, पीलीभीत शरीफ वाले उनकी बारगाह में जब आए, वो दोनों मौलाना अभी पूछ नहीं वाले थे, शाजी मियाँ हुजूर ने यहाँ से गर्दन पकड़ी, और पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके यहाँ से सर को अलग कर लिया, हाथों में ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबोया, फिर निकाला, 3 मरतबा डुबोने के बाद सर पे गर्दन पे रख लिया, और रखने के बाद बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कहने लगे मौलाना अब तो सुन्नत छोड़ो, गुस्ल हो गया है। अब तो मसा नहीं रहा बल्कि पूरा ही गुस्ल हो गया। उन्होंने कहा इन्होंने तो दिल की बात पढ़ ली, कदमों पे गिर गए और तौबा कर ली।
मगर ऐसे बनो तभी तो। वो दिल में ना वो इतनी खुराफातें शैतानी बातें वो सब भर ली हैं। 2 मिनट अगर 5 मिनट 2 भाई बैठेंगे ना तो एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछेंगे, अदब नहीं करें। वो अपना मोबाइल चला रहा, वो अपना चला रहा, SMS लिखे जा रहे हैं, चैटिंग। क्या जिंदगी बना ली है यार। एक बात बताओ, मेरी बहनें बैठी, थोड़ी वैसी बात है मगर बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना। इसलिए कह रहा हूँ ये बात पहुँचाना ज़रूरी है। कैसे पलट के कहूँ, थोड़ा सा हल्का करके कहता हूँ, समझ लेना बात को। ये जो रिश्ते हो रहे हैं ना, रिश्ते, माँ है, माँ अपनी बेटियों को सजा करके शादियों में लेके जाती है। लेके जाती है, नहीं लेके जाती? कुंवारी लड़की है, उसका पूरा मेकअप डेकोरेशन सब बन। इस माँ से पूछो ये क्यों लेके जा रही है ऐसे सजा के, उसके बाल पहनावा क्यों? ताकि लड़कों की नजरें पड़े, मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। यही तो है ना, ताकि मेरी बच्चियों का, बेटियों, क्यों? उसे मालूम है आजकल लड़के मर्द नहीं है, लफंगे हैं, लफंगे। क्योंकि वो खुद देखेंगे, वो ऐसे ही देखेंगे। कुछ लड़के मोबाइलों पे बात कर लेते ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, बस मीठी मीठी बातें कर ली, रिचार्ज करा दिया, बस मर गया उसी पे ही। अब नहीं देखता कौन सा खानदान है, क्या अम्मा के कहने से शादी नहीं करता। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी। जब पैसे ख़त्म हो गए, तुम गए गैरेज पे और वो मोबाइल पे। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो लड़की तुम जो उसके पीछे मर रहे हो, मिट रहे हो, जहर खा रहे हो, यूं कर रहे हो, अम्मा की नहीं सुन रहे हो, अब्बा की नहीं सुन रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है। रात के 12-12 बजे जो चैटिंग कर रही है तुमसे, तो वो माँ को धोखा नहीं दे रही है? जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? बोलो। जिस बाप ने 18-20 साल अपना माल खिलाया, पाला, सर पे रखा, सब कुछ, उसी बाप के साथ गद्दारी कर रही है, उससे छुप कर तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें सब कुछ जाने क्या क्या कह रही है, वो जुमले मैं एक पे बोल नहीं सकता क्योंकि बहनें भी बैठी हैं, तुम सब जानते हो। तो जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो लड़की अपने सगे भाई को, भाई का रिश्ता कितना करीबी खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल मत बनो। अगर तुमसे, उसकी तो मोबाइल पे बात करने की आदत हो गई, जब तुमसे बात कर रही है तो आदत तो तुमने ही बिगाड़ दी। और तुम इतने दूध के धुले हुए, तुम ही उतरे थे पहले आसमान से, जो सबसे पहले तुमसे ही बात करने लगी। वो क्या पता तुमसे पहले कितनों से बात कर ली, और तुम्हारे बात कितनों से करेगी। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। जो लड़की अपने बाप को धोखा देगी, बाप को, तुम करोगे काम और घर में होगी गुंडागर्दी। कैसे बोलूं, माइक पे गुस्सा आ जाता, लेकिन जुमले समझ लेना मेरे। वरना रिश्ता करो तो माँ बाप के कहने से करो। आजकल कुछ लड़कों ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते तोड़ दिए, उस लड़की ने मोबाइल लेने से और फोन करने से मना कर दिया। इस लफंगे बेहूदे से पूछो, अरे जो तुझसे हंसेगी, बोलेगी, क्या खाना खाया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या सो रही हो, क्या पी रही हो, ये छिचोरापन करने के लिए वही लड़की, उसका प्यार मानोगे तुम, उसका प्यार। अरे ये धोखा है, धोखा, खाएगी तुम्हारा माल और बदमाशी कहीं और चलेगी। अब इससे गलत जुमला मैं नहीं बोल सकता, मेरी बात समझ लियो पूरी। इतने नादान नहीं हो तुम। कैसे नादान लड़के हैं हजरत। कई बच्चियों ने, जिन्होंने, लड़कियों ने तकरीरें सुन ली हैं या जो पढ़ रही हैं, पर्दे से रह रही हैं, उस वो लड़के का रिश्ता हो गया, वो मोबाइल पहुंचवा रहा, उसने फेंक दिया, मोबाइल नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, तो इसने रिश्ता ही तोड़ लिया। क्या नाचने वाली को लाएगा, क्या फाहिशा को लाएगा, जिस्म बेचने वाली लड़की को लाएगा क्या? सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात, जरा नबी की बेटी की सुनो। सैयदा फातिमा हजरत अली से कह रही थी, मेरे सरताज, जब मेरा
جب تک میں زندہ رہوں گی کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ نبی کی بیٹی ہے اور تم نے اس لیے رشتہ چھوڑ دیا کہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے؟ پھر کوٹے پہ کیوں نہیں چلے گا؟ گھر لو، بھر لو گھر اپنا ناچنے والیوں سے۔ توبہ 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 توبہ، مجبوری ہو گئی ہے کچھ لڑکیوں کی اب بات کرنا، مجبور کر دیا ان لفنگوں نے۔ کہیں کا میلہ، اگر میلہ لگا ہوا بساط خانے کی دکان ہو تو 10-12 لفنگے اسی بساط خانے کی دکان میں گھوم رہے۔ اس سے پوچھ وہاں عورتوں کا سامان لینے جاتا، ارے تم مرد کے چھکا، چوڑی پہنے گا، کڑھے پہنے گا، کیا زیور پہنے گا، کیوں گیا عورتوں کے میلے میں؟ یہ اس لیے گیا تاکہ کسی کے کونی لگ جائے، دھکا لگ جائے۔ اس سے کہو تیری ماں گھر میں مار کونی، تیری بہن گھر میں ہے، جا کر بدتمیزی۔ شرم آنی چاہیے۔ اچھی خاصی لڑکیوں کو ذہن بگاڑ کے رکھ دیے، شریف بچیوں کا اب رشتے ہی نہیں آ رہے کیونکہ لفنگے لڑکے ہو گئے، لفنگی لڑکی ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بات کر، موٹر سائیکلوں پہ گھومی پھر رہی ہیں۔ اماں ہے، اماں بے حیا کہیں کی، وہ لڑکا لڑکی کو گھر میں لے گا، کون ہے بیٹا؟ کسی نے پوچھا کون ہے، بولے وہ میرے بیٹے کی گرل فرینڈ ہے۔ گرل فرینڈ ڈوب کے نہیں مرا گیا تجھ سے؟ ایک جوان لڑکا اور لڑکی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا اور ویسے رہ رہا اور پھر اپنے کمرے میں لا کے رکھ رہا، وہیں پر کون ہے؟ اس کی دوست ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ وہ پیٹرول اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، چاہے پیٹرول جائے آگ جائے، لگنی آگ ہے۔ اس سے پوچھو وہ جوان لڑکی کسی لڑکے کو، کون ہے بیٹا؟ بولی وہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ بوائے فرینڈ گولی مار دو رکھ کے۔ ایسی بیٹی پالی ہے؟ بے حیائی کا بالکل بازار گرم کر دیا۔ نہیں، مسلمان کی بیٹی ایسی نہیں ہوگی۔ مسلمان کی بیٹی کا طریقہ ہے اللہ اللہ، شام کو سو رہی ہے تو قرآن پڑھ کے سو رہی ہے، صبح کو اٹھ رہی ہے تو قرآن پڑھ کے اٹھ رہی ہے، پیٹ میں امید ہے بچے کی، قرآن پڑھ رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، 18 پارے صبح سے شام تک پڑھ لیتی ہے۔ جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 18 پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دار تکبیر، دار رسالت، دار غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ عورت کا مقام کم نہیں ہے، غوث پاک کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے، نیک لوگوں کو جنم دینے والی عورت ہے، مگر کتے بھونکانے والی نہیں تھی۔ اب تو 40 سال کی ہو، گجرا رہی ہے، گجرا، منہ پھیلیا کہیں کی، منہ یا کچھوے جیسا، اور بس دانت پھاڑنے سے مل جائے بس۔ جوان بیٹیاں گجراتی پھر رہی ہے، گجراتی بڑی اچھی لگ رہی ہے صاحب، کوئی بولنے والا نہیں رہا۔ ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے، عورت۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں پیٹ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اماں تلاوت کرتی ہے، جب پیدا ہوتے ہیں تو 15 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ غوث پاک کی ماں نے کبھی بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، اندر گھر میں اور کپڑا ڈھک کے ایسے، اللہ برکتیں فرمائے، کپڑا ڈھک کے ایسے تاکہ جسم نہ دکھے، ایسے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور اب تو گلے اتنے، میرا اشارہ سمجھ رہے ہو، اتنے ڈھیلے پہن رہی ہیں، گھر میں جوان دیور ہے، گھر میں سسر ہے، آدھا آدھا جسم دکھ رہا اس کا، گھر میں
भैये भतीजे कौन कौन है, ये लच रही है तो जिस्म दिख रहा, झाड़ू मार, दुपट्टे तो हैं ही नहीं, शर्म हया गैरत खत्म कर दी है बिल्कुल, सारी चीजें खत्म। मगर सभी लड़कियां गलत नहीं है। एक लड़की ना सूरह वाक़या रात को 3 मरतबा पढ़ती थी और दुआ करती थी, या अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो ऐसे से हो जो हाफिज़ कुरान हो। उसे मालूम था जिस घर में अगर कुरान की एक आयत हो तो नूर होता है, और जिस दिल में अगर, जिसके सीने में अगर पूरा कुरान हो तो कितना नूर होगा। वो दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ। कहीं से रिश्ता आया, उसके अब्बा को रिश्ता अच्छा लग गया, सुनने की बात है। अब्बा को रिश्ता अच्छा लगा, कहा बेटी लड़का नमाजी है, घराना भी अच्छा है, दौलत भी है, सब बातें हैं, मगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रिश्ता कर दूं। अब लड़की शर्मीली, कौन लड़की आज की थोड़ी थी, मुफट। कहा अब्बा जान ठीक है आपकी जैसे मर्जी, मगर दिल में वही कि हाफिज कुरान से रिश्ता हो जाए। अच्छा लड़का था, रिश्ता हो गया, अब्बा के सामने उसने जबान नहीं खोली। और कैसी लड़की हैं, तोबा तोबा, मैक पे बोलने की बातें नहीं होती। कितनी मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों से टच, सही बता रही हूँ मैं सब, और कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों से टच, दोनों तरफ से है। क्या है ये सब, जरा सोचने की बात है, गौर करने की। उस लड़की ने बाप के सामने जबान नहीं खोली कि अब्बा जान ठीक है जैसे आपकी मर्जी, बारात का दिन आ गया, निकाह हो गया, लड़की ने इजाजत दे दी, रुखसती हो गई, शौहर के घर में पहुंच गई। रात को शौहर आया तो लड़की के ज़हन में वही घूम रहा था, पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरे पढ़ने में कमी रह गई, कुरान तो गलत नहीं हो सकता। लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने जबरदस्ती नहीं करी थी, पहले तुम्हारी मर्जी पूछी थी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता किया, बोलो अब मायूस क्यों? लड़की बोली सुनो, निकाह की इजाजत मैं नहीं दी है, मैं नहीं दी है, और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वही लौट लौट के आ रही है मेरे दिल में कि मेरी वो आरजू पूरी क्यों नहीं हुई। शौहर बोला क्या तमन्ना थी? कहा मैंने ये तमन्ना की थी कि मेरी जिससे शादी हो, रिश्ता हो, वो नमाजी हो और हाफिज कुरान, और तुम हाफिज कुरान हो नहीं। शौहर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा यार इतनी साफ सुथरी लड़की, इतनी अच्छी लड़की। कहा देखो अब तो तुम मेरी बीवी हो ही गई हो। कहा हाँ ठीक है, मगर ये तमन्ना तुम्हारी पूरी होगी। कहा कैसे? कहा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं हो जाऊंगा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह, उस वक्त तक तुम्हें हाथ। बीवी बोली नहीं इतनी बड़ी वो मत करो, वो तो दुआ मांगी थी नहीं हुई, तुम्हारा इसमें कसूर थोड़ी है, मेरी कोई गलती हो सकती है जो कबूल नहीं हुई, मैं इंसान हूँ, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हो सकता है, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कहा नहीं मगर तुम्हें कुछ झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे घर वाले तुम्हें खा जाएंगे, कुछ कहेंगे कि हमारा बेटे को मरवा दिया, कुछ कहेंगे बेटा भाग गया, कुछ मुझे कहेंगे, कुछ तुम्हें, बस झेल लेना। कहा ठीक है। अब वो लड़का सुबह होते ही चला गया, लड़की रोती रह गई, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, मौला ये एक इम्तिहान और आ गया। शौहर गया एक दूर मदरसे में, जाकर के कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हाफिज कुरान होना कितने दिनों में हो जाऊंगा? कारी साहब बोले 3 साल में। कहा 3 साल में तो बीवी मर जाएगी, क्योंकि उसकी बहनें टॉर्चर कर रही हैं, हमारे भाई को खा गई, ये कुटनी है, नासूर है, जो हमारे बकरे मोहल्ले में जानते हैं हालात। अब तो इतने बुरे हालात हैं, अगर कोई लड़की ना नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ने लगे तो ये बुढ़िया सास क्या कहती है मालूम? कहती है और पढ़ पढ़ के जादू कर रही है, जादू। ये बुढ़िया कह रही है, बुढ़िया। ये भी कम नहीं है,
अगर नमाज पढ़ के वो तस्बीह पढ़ लेना और शौहर अगर कहना मान ले, बना लिया गुलाम, गुलाम बन गया गुलाम। ये बुढ़िया कह रही है, जरा सोचने की बात है, समझना सबको पड़ेगा। वो कहने लगा कारी साहब कम करा लो। दूसरे मदरसे में गया 2 साल, एक में गया 3 साल, 2-3 दिन घूमते हुए हो गए। उधर वो लड़की रात को रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना और जल्द अज जल्द हाफिज कुरान बना देना। ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकत अता करना। रो रो करके दुआएं कर रही है। 3 दिन जब गुजर गए तो एक रास्ते में फकीर मिल गया। फकीर बोला, अरे नए दूल्हा मियाँ तुम यहाँ घूम रहे हो? फकीर वही था जो आंखें बंद करे और सब देख ले, जो आंखें बंद करे सब देख ले। कहा नए दूल्हा मियाँ तुम्हें? कहा आपको कैसे पता नए दूल्हा मियाँ? कहा तुम्हारी बीवी ने ये मन्नत मानी थी और तुम हाफिज कुरान। कहा बाबा मेरी मदद करो, कोई मदरसा ऐसा बता दो जल्दी। कहा जा बगदाद में चला जा, बड़े पीर साहब का मदरसा है, वहां पर पढ़ाया नहीं पिलाया जाता है। शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसे बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। वो फकीर कहने लगा जाओ बगदाद चले जाओ। अल्लाह लगों से पाक के मदरसे में चला गया, सलाम किया। बड़े पीर साहब बैठे हुए थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले नए दूल्हा आ गए। सुभान अल्लाह बोला। ये नेक लड़की की दुआएं काम कर रही, और जो लफंगी तुमसे मीठी कहाँ है, वो बेहयाई की बातें हैं, वो कर कर के वह तुम्हें लट्टू बना के घुमा रही है। तुम समझ रहे हो पूरी दुनिया से ज़्यादा हमसे ही प्यार करती है, मोहब्बत। अम्मा को धोखा दे रही है, अब्बा को चूना लगा दिया, भैया को, अब तुम ही और बचे हो बस। जिसकी ऐसी शादी होती है 1 साल में उसको भी चूना लग जाता, बहुत देख ली हमने। एक आधी चल पाती है। कहने लगे जाओ बड़े पीर साहब के मदरसे में पहुंच गए। बड़े पीर बोले नए दूल्हा इधर आ जाओ। क्या सरकार हाफिज होना है? बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? पहले वो पूछ रहा था कितने दिनों में, अब बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए?
सरकार 6 महीने में करा दो। बड़े पीर बोले बस कम करो कम। अब तो इसे पसीना आने लगा, बोले यार लग रहा है ज्यादा पढ़ाएंगे तो पीटेंगे भी ज्यादा ही, समझे, पीटेंगे भी ज्यादा। बड़े पीर बोले कम करो, कहने लगा सरकार 3 महीने। बड़े पीर बोले नहीं अब भी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीना। बड़े पीर बोले 1 महीना, ये भी ज्यादा कम करो। सरकार 1 पारा पढ़ रहा है 1 महीने में, 1 पारा रोजाना कैसे याद करो। उसे क्या पता था आज पढ़ाया नहीं जाएगा, पिलाया जाएगा। कहा सरकार 1 महीने का नहीं कम करो, सरकार 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा सरकार 5 दिन में। और दिल में सोचा यार आज मर गए, सुबह से शाम तक पारा क्या याद करूंगा, पिटाई होती रहेगी। 1 पारा याद करना आसान है क्या, तो 30 दिन में होगा। कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर वाले चल दिन को छोड़ हटा, ऐसा कर असर का टाइम हो गया, वुजू बना ले, मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत फरमा। इतना टाइम तो इनके नारों में ही लग जाए। पहले मैं टाइम देख लूं। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अरे 1:45 हो गए, अब पता भी नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार से सुन रहे हो, मोहब्बत से सुन रहे हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मौला अगर किसी के पास औलाद ना हो तो औलाद दे दे। ऐ अल्लाह अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह किसी के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो, उनके रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। किसी का घर नहीं बना, कोई परेशानी है, दिक्कत है, जादू टोना, सहरा से भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस, किसी भी तरीक़े की उलझन है अल्लाह सारी उलझनों को गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो ना सुभान अल्लाह। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तुम्हारा मैक बहुत प्यारा। कहाँ का है? मना ठहर के ना। अब अरे तुम तो हर जगह गए, चुप जाओ। बस एक ही जगह रह गई हो, वहाँ अल्लाह बरकत अता फरमाए, अभी ज़्यादा जल्दी ना भेजे। ये बंदा ऐसा ना, हमारे यहाँ ख़त्म क़ादरिया हो रहा था रामपुर में, तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जानते होंगे, वो मेरे खुश रहे, तो उनके यहाँ हो रहा था। अब ये मेरे पीछे आया चुपके से, बोले सैयद साहब आज शाम को प्रोग्राम का। अब मैं ऐसे कर रही हूँ, हट जा। ये कांट है, ये जिन से भी आ गए, ये चला कान लगा। बोले सही साहब बता दो कहाँ। तो मैंने कहा लालू नंगले में है वहाँ, तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, अल्लाह बरकत फरमाए। तो मैं मोटरसाइकिल से चला गया, सैयद फैज़ान में एक मोटरसाइकिल लगा, तो बीच में आंधी भी आई थी, हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए। हम सवारी से गए, इससे गए, तो देखें तो ये बंदा हमसे पहले वहीं रखा था, वहीं रखा था। ये पता नहीं कैसे पहुंच, कोई पता नहीं अजूब आई है। अल्लाह बरकत फरमा। किसी को हकीर मत समझो, समझे। तो इनसे बात नहीं हो रही थी, बोले हम गए हैं वहाँ, अब तुम मैक वालों घर और जाओगे। अरे दावत मत दे दियो, 8 दिन तक वहीं रहेगा ये बंदा। अल्लाह बरकत फरमाए। चलो वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। हाफिज अरमान साहब, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा
دربا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے اقتاب بڑے پیر بولے چل وضو بنا لے، عصر کی نماز پڑھ لے، ادھر کو سلام پھیروں گا 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو جائے گا، اور ادھر کو سلام پھیروں گا پورے کا حافظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، کھانا بہت پیارا، اللہ ان کے گھر کی بچیوں کو سلامت رکھے، بہویں ہوں تو ان کو بھی سلامت رکھے۔ سارے علماء مجھے بتایا امام صاحب نے، ارمان صاحب نے، کہ ہر سال انہیں کے یہاں یہ مت سمجھیو کہ یہ میرے زیادہ سگے اس لیے نام لے رہے ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں، اس لیے تاکہ تمہیں بھی محبت ہو تو تم بھی علماء کو بلاؤ، اچھے لوگوں سے محبت رکھو۔ کوئی پتہ نہیں ہے بیٹا کون کیسا ہے، جس کے قدم رکھنے سے نا گھر کی بیماریاں ختم ہو جاتی۔ نبی فرماتے ہیں نا، نبی بات مجھے یاد آ گئی، حضرت لوگ بات یاد آ گئی، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ہو نا، عالم کسی بستی کا قبرستان ہے نا، اس قبرستان سے خالی گزر جائے، کیا کرے بولو؟ دعا بھی نہیں کرے، کچھ نہ پڑھے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے نا 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا۔ یہ نور الدین منظر صاحب اچھا چلے گئے، وہ بیٹھے، ان سے پوچھو، ہم گئے، میری بات ہے مگر میں اس لیے بتانا، چلو بتا دیتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگ اچھے لوگوں سے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے اچھا کر دے، باقی ان سب لوگوں سے تو محبت کرنے لگو۔ اس نے ایک کے گھر ہم گئے، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس نے بیٹھے بیٹھے منت مان لی اور یہ ہوا، چلو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب تھا، وہ بات میں پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اب حافظ قرآن ہو گیا وہ، جب حافظ قرآن ہوا اب تو بڑا خوش، 4 دن میں بی بی کے پاس پہنچ، ہاں اب بڑے پیر صاحب سے کہنے لگا حضور میں حافظ ہو گیا۔ بڑے پیر بولے یہ مت سمجھیو یہ تمہارا کمال ہے، جو تمہارے گھر میں بی بی ہے نا وہ مصلے پہ رو رو کر کے میری دادی کا واسطہ دے رہی ہے، وہ جو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے نا میرے خاندان والوں کا، کربلا والوں کا، سارے سیدوں کا واسطہ دے رہی ہے، تو میں عبد القادر قسم ہے رب ذوالجلال کی، سمجھے، تو اس کے شوہر کو حافظ قرآن بنا دیا۔ کہا یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ تمہاری بیوی کا کمال ہے۔ شام کو گھر میں ہی پہنچ گیا، السلام علیکم، بیوی کا چہرہ خوشک ہو گیا، میرے سرتاج آ گئے، اچھا ہوا، مگر بولو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مت جانا، تم حافظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسے معلوم تھا 3 سال میں ہوگی۔ شوہر کہنے لگا او میری بیوی حافظ قرآن ہو گیا۔ بیوی بولی سچ میں؟ بیوی بولی سچ میں؟ آج کی بیوی نہیں تھی جو اپنے شوہر کے پیسے چرا لیتی ہے، صحیح بتا رہے ہوں، بڑے گھٹالے چل رہے ہیں، آہستہ بول رہا ہوں تاکہ ادھر آواز نہ پہنچ جائے، مگر یہ میک والے پہنچا کے چھوڑیں گے آواز ادھر بھی، محمد رفیع نام ہے نا۔ تو آج کی بیوی نا شرٹ ٹنگی ہے، پینٹ 500 مار دی ہے، چوری کہاں کر رہی ہے، پوری ویرپن بنی پڑی ہے، چوری کہاں کر رہی ہے، تو سوچو، کبھی شوہر کے 400 مار دیے۔ اب شوہر صبح کو اٹھا، بولے یار پیسے بہت چر رہے ہیں، بولی ہاں میں نے گھر میں ڈنڈ ٹہلتا ہوا دیکھا تھا، ڈنڈ، بولی اس کا دھڑ کٹا ہوا، سر ہلا اور ڈرا دیا، اگر پیشاب کے لیے بھی اٹھے گا تو نہیں اٹھے گا ڈر کے مارے۔ بیوی بولی دانت ایسے ایسے کر رہا تھا، ایسے ایسے، تم کسی میاں کو دکھا لو، اور میاں بھی بعض اتنا بڑا لپنگا ہے، اتنا مارا جائے گا اس میاں کو، اللہ معاف فرمائے، گھر میں ایسے کرا دیے، ایسے
فال کھول کے بولا تیرے گھر والے نے کرایا. بولی بس میاں میں سمجھ گئے چھوٹے بھائی کی بیوی ہے. لے گھر میں جھگڑا. سگے بھائیوں میں ایسے کرا دی فال کھل رہی ہے فال, اور فالا کھول دیا ان. ذرا سوچو, وہ بھی اس چکر میں دکان کھولے بیٹھ. جو صحیح ہیں وہ صحیح. میں صحیح والوں کی بات, وہ تمہارے سر کے تاج, ان کی دعائیں کام کرتی. میں لپنگوں کی بات کر رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی؟ لپنگوں کی بات. ارے تو کیسا میاں ہے بھائی, عورتیں تیری ٹانگیں دبا رہی ہیں سوچنے کی. تو کیسا میاں ہے کہ عورتوں نے تیرا ہاتھ پاؤں دباتے دباتے تیرا گوشت پل پلا کر دیا. اب میں اپنی بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں, اگر کوئی ایسا میاں ملے نا تو ذرا تگڑی سی 3-4 آ کے ہاتھ پاؤں نہ دبائیں, اس کا گلہ ہی دبا دیں, جو کام تمام کر دیں. یار بہت دنوں ہے نہیں کہہ رہے ہیں, صحیح بات ہے. یہ بھی لگ رہا ہے کافی دکھیارے ہیں. لیکن سنو, کہنے لگی بی بی بولی صحیح بتا کہاں مجھے مل گئے بڑے سرکار غوث پاک, جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. ذرا پیار سے بولو, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث غیر لاڈلا بیٹا تیرا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ کے نام سے شروع, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اللہ فرماتا وما ارسلناک, اے محبوب ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر رحمت عالمین کے لیے رحمت بنا کر. بے شک, ہم نے آپ کو کس کے لیے؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. پیارو, ان باتوں پہ عمل کرنا اور ہر سال جلسہ کرو. تمہارے گاؤں میں بہاریں آتی, بستی میں پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون آ جائے, ان لوگوں میں کون آ جائے. اور دنیا داری میں تو پیسہ اٹھاتے ہی رہتے ہو. نبی کے محبت میں محبت کا اظہار کیا کرو, سمجھے؟ اپنے اماموں کا خیال رکھو, عالموں کا, نمازیوں کا, حاجیوں کا. ایک دوسرے کا ادب ضرور کرنا, ٹھیک ہے؟ میل کچیل دل سے حسد کینہ بغاوت نکال پھینکو, اللہ برکتیں فرمائے. اور آج کے بعد ماں باپ کے ذریعے سے کیا کرو؟ رشتہ کرو. اچھا, رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے تمہیں کوئی 1-2 دن نہیں گزارنا ہے, وہ تمہارا لائف پارٹنر ہے, زندگی بھر ساتھ میں رہنا ہے, زندگی بھر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے وہ غریب ہو لیکن پردے میں رہنے والی لڑکی ہو, قرآن شریف پڑھنے والی, وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے. وہ خود مر جائے گی مگر اپنے شوہر پہ آنچ آنے نہیں دے گی, ٹھیک ہے؟ جہیز کے چکر میں بھی نہیں. اگر مل جائے تو الحمدللہ, مانگو مت. کون ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو دینا نہیں چاہتا, مگر کچھ ایسے ہیں نا جو کار کے چکر میں, موٹر سائیکل کے چکر میں, اس کے چکر میں جو رشتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہٹاتے ہیں, توڑتے. یہ سب مت کرو, سمجھے؟ لڑکی پرہیزگار دیکھو, نمازی دیکھو, اچھی دیکھو. یہ دیکھنے کے بعد اگر اس کے ماں باپ دے رہا ہے تو الحمدللہ شوق سے لو, وہ تمہارے لیے جائز ہے, سمجھا؟ مگر مانگنا نہیں, مانگنا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھکاری مت بننا, بھک منگے مت بننا, فقیر مت بننا, ننگے لچے یہ سب مت بننا. مزدوری کر کے کھا لینا مگر شان سے کھانا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مزدوری کر لینا بیٹا. اور سنو, جو لڑکے خالی گھومتے ہیں خالی مت گھومو, کام کرو, نمازیں پڑھو, قرآن پڑھو. اور اگر نہیں پڑھ پائے ہو تو تم آدھا گھنٹہ اپنے امام صاحب سے یا جو اچھے عالم ہیں ان سے پڑھنا شروع کر, آدھا گھنٹہ. اور اب تو موبائل کا دور ہے یار, تو موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہو.
मोबाइल 1-1 2-2 घंटे तुम वो चुटकुले जो क्या बोलते हैं उसको, क्लिप है, क्लिप हैं, हाँ, क्लिप बना बना करके हंसी मजाक की लड़के छोड़ रहे हैं, लड़के लड़की सब छोड़ रहे हैं, तो तुम उसको देखने में हंस रहे हो, घंटों घंटों गुजार देते हो। आधा घंटा तुम मोबाइल से दीनी बातें भी सीख सकते हो, तुम अपने आप को सुधार सकते हो। मोबाइल को तुमने ले लिया है ना, तो इसको गलत इस्तेमाल मत करो, सही इस्तेमाल करो। अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा। ये मौलाना लोग मोबाइल रखते हैं, मेरे पास मोबाइल है। पहले हम जाते थे तो हम किताबें लेके जाते थे, अभी भी मैं हाजी साहब के यहाँ था तो मेरे बैग में किताबें हैं, मैं पढ़ता हुआ जाता हूँ, बाकी इसमें मोबाइल में किताबें हैं। ये लोग मोबाइल इसलिए रखते हैं बड़ा, इनके मोबाइल में कुरान शरीफ है। पहले अगर कुरान शरीफ सुनाने जाते तो कुरान शरीफ लेके जाते थे, अब लेके नहीं जाते, अब इसी में है। बुखारी शरीफ इसी में है, मुस्लिम शरीफ इसी में है, तिरमिज़ी शरीफ इसी में है, अबू दाऊद और इब्ने माजा, मिशकात शरीफ, सारी हदीसों की किताबें इसमें हैं, मसाइल की किताबें इसमें हैं। सारी चीज़ें हमें 2 मिनट लगते हैं, निकालते हैं और देख लेते हैं। और इसमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं, बस में अगर जा रहे हैं ना या कार में जा रहे हैं तो अगर अंधेरा भी है तो इस मोबाइल की लाइट होती है, उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर थोड़ी नज़र कमज़ोर है उसको जूम भी करके पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मोबाइल को अब ये उलमा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए बेहतर अच्छा है। और अगर इसको जो गलत इस्तेमाल करे, चाहे मौलाना हो या तुम हो, उसकी तो बात मैं करता ही नहीं। जो गलत करे तो वो तो गलत ही, समझ में आ रही, चाहे मौलाना हो या मैं हो या तुम हो, कोई भी हो। लेकिन 100 मौलाना मोबाइल है तो कम से कम 99 मौलाना इसमें कुरान शरीफ, किताबें, हदीस, मैं खुद अपनी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझ में आ रही, ये सब होता। तो इसलिए ये लोग बड़ा रखते। तुम अगर बड़ा रख रहे हो ना मोबाइल, अब तो तुमने ले लिया और रखो, दौर है, ज़माना, मगर इसको मिस यूज़ मत करना, इसको गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना। मेरा इतना कहना मानोगे? बोलो हाँ या ना बोलो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सही इस्तेमाल करो और काम करने जाओ, काम खूब मेहनत करो, तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो। तुम ऐसे मत बनो कि लइए रे यार गुटके के लिए पैसे दे दे, लइए रे यार भिख मंगे कहीं के, ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे बनो तो ख़ानदान में से 10 लोगों की मदद करो, बहन भांजियों की तुम्हारी तरफ नज़रें उठ जाएं कि मेरा भाई कमाता है। तुम ऐसे बन जाओ ना, लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओ। बोलो, काम काज से जुड़ोगे, आज से कोई खाली तो नहीं घूमेगा। खाली घूमने वाले या तो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, ये सब बातें करेंगे। हमें खाली नहीं रहना साहब, हम काम करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास 20 लाख रुपए होंगे तभी काम होगा, समझे। 50,000 से भी काम जोड़ सकते हो, 5,000 से भी जोड़ सकते हो। अगर मेहनत करोगे, मेरी दुआएं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ में रहेंगी, 1 साल में कहीं से कहीं जाओगे। मैंने ये बात कह दी थी जब मैं जसपुर में था, राजपुर का एक लड़का, वो बाल काटना सीखा, बाल काटने सीखने के बाद वो चला गया दुबई, समझे, मोइन नाम था उस लड़के का, दुबई चला गया। आज उसके 3 सैलून हैं, मतलब 3 बाल काटने की दुबई में उसकी खुद दुकानें हैं। अंदाज़ा लगाओ, दुबई में दुकान है, और गाड़ी उसकी खुद है। जब मैं 3 दिन के लिए शारजा गया तकरीर के लिए, 3 दिन के लिए जब मैं दुबई गया तो उसे पता चला सैयद साहब आ रहे हो, तो उसने कमेटी वालों से स्टे लेके ये कहा था 3 दिन मेरे साथ रहेंगे, मेरी गाड़ी में घूमेंगे। उसने पूरे प्रोग्राम ले लिया, बोले पहुँचाना मेरा काम है, टाइम पे तुम्हारे स्टेज पे पहुँचाना। तो जब स्टेज पे आया बोले हुजूर आपने पहचाना? मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं पहचाना, 5-6 साल होगा, और जने कितने लोग मिलते हैं ऐसे मुसाफा करके। मैंने दुआ कर दी थी, ध्यान थोड़ी रहता है, दुआ कर दी, उसके सीने पे हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर। वो उतनी इतनी मेहनत की, बोले मुझे आपकी ये बातें लग गई थी। और जब मेहनत करी हज़रत, ये 3 दुकानें मेरी हैं, ये गाड़ी मेरी है। यहाँ के लोग भी मुझसे कहते हैं और थोड़े दबके रहते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि ये पैसे वाला। एक दिन वो था, वो ऐसी गलियों में घूमता फिरता था, उसने बाल काटना, तुम भी बन सकते हो, कर सकते हो। तो 3 दिन में उसके साथ ही जब एयरपोर्ट पे मुझे लेने आया ना, तो बोले हुजूर मैं वो हूँ वो। मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है, ध्यान भी नहीं था मुझे इतने दिनों में। फिर मुझे अरे मैंने कहा राजपुर का जो लड़का मोइन था, बोले हाँ हुजूर, बोले मैं वही हूँ, आज ही है 3-4 साल में। तो तुम मेहनत करो, अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है, समझे। ये लोग चैनल वाले हैं, ये अपने फैला रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर हमारी तकरीरें जाती हैं और लोगों की भी तकरीरें जाती हैं, समझ में आ रहा है। ये भी एक दीन का, मैं हालांकि इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, कहीं कोई ये समझे कि साहब ये फतवा लगा दिया, जायज़ कर दिया, वो कर दिया, पहले बताए दे रहा हूँ, समझे। हर एक का जो काम है, समझ में आ रही है मेरी बात, नीयत उसको रखेंगे संभाल कर। तो बात जो मैं बता रहा था, ये कह रहा था खाली मत घूमो, खाली
घूमो गए तो लड़ाई झगड़े करो। घर में अगर एक कमाए 5 बैठ के खाएं तो कितना ही कमा ले पूरा नहीं पड़ेगा, और 5 अगर कमाने लगे ना तो 2 का खर्चा हो जाएगा, 3 का बचा के तुम आगे बढ़ जाओगे। आपस में मेल मोहब्बत प्यार। सुबह उठो, सुबह उठ के क्या करो, फजर से पहले जाओ 4-5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, और दौड़ लगा के ताज़ा ताज़ा पानी से नहा के फजर की नमाज पढ़ो, फिर तुम खाओ चने कच्चे, समझे, दूध पी लो, पानी पी लो, देखो माशाल्लाह तुम शेर की तरह सीना निकाल के चलोगे। ऐसे थोड़ी कि 18 साल का हुजूर तो ये तो मेरा लीवर ठीक नहीं है, 3 साल से 52 पी रहे हूँ, लीवर 52। मैंने कहा 52 नहीं 59 भी अगर तुम पी लेगा तब भी ठीक नहीं होगा, समझे। 18-20 साल के बच्चे का लीवर ठीक नहीं है। रात के घुन लग गया इसको, 2-2 बजे वही मोबाइलों पे चैटिंग चल रहा, तुमने क्या खाया, क्या पहना, कैसे कपड़े पहने हो, ज़रा दिखाइयो, बाल यूँ करो, तू करो। 2 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक सो रहा, आंखें उठ रही हैं, सूजवी, जिस्म में दर्द, जैसे अभी 2-4 घोड़ों ने से लताड़ा मरा खुरा, ऐसी सूरत बन जा। अच्छा बोलो होता नहीं होता? आज से मेरा कहना मानोगे, कामयाब बनोगे, कामयाब बनो, सब आगे बढ़ो। शहर मुरादाबाद में ही हो, तुम कर सकते हो, रास्ते निकाल सकते हो, कौन, मगर जायज़ काम करियो। इतना ख्याल रखना, जायज़ करना, किसी को गरीब को मत सताना। सताओगे तो आगे हरगिज़ नहीं बढ़ोगे, आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सताने के बजाय अगर मदद कर दोगे तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, समझ में आ रही, तब तो चांसेस हैं, वरना जो है बढ़ नहीं सकते। मेरी इस बात को याद रखियो। तुमने चंदा दिया, अल्लाह कबूल करे। तुमने ये सब उलमा का इंतज़ाम किया, अल्लाह कबूल करे। तुम्हें इतना दे मौला, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हज़रत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। हमारे इमाम साहब की तबीयत नासाज है, मौला इनको, अरमान साहब को मौला इनको सेहत अता फरमा दे, और भी उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। मेरे लिए भी दुआ करो, रोज़ाना बोलना पड़ता है, अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। किसी अच्छा मस्जिद अभी तामीर नहीं हो पाई है ना, अच्छा काफ़ी पुरानी मस्जिद है, उसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दो। मौला अपने हबीब के सदक़े में परवरदिगार आलम इनको उसकी तरफ रुझान मौला करा दे, और मौला तू अपने घर का काम इनसे ले ले, जल्द अज जल्द वो बन जाए। परवरदिगार आलम हमारी नीयतों को कबूल व मंजूर फरमा। मेरे साथ अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि मैंने कुछ कर्री भी कह दिए, माफ़ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।